Assalamualaikum students. This is Shahrukh Shera, and I am going to perform question number 3, variant 32, May-June 2025. It is all about qualitative analysis. So basically, we have been provided with two unknown solutions. One is FB7 and one is FB8. The question paper can be shared or will be shared in some link with this video. तो अगर हम आसान लफ्जों में इसको कहना चाहें तो FB7 FB8 दो केमिकल्स हैं. इन दो केमिकल्स को मतलब देखिए FB7 एंड FB8, इन दो क्वेश्चंस के ऊपर हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करना है और फिर पहचानना है लाइक व्हिच ऑफ द आयंस आर इन बोथ ऑफ द सॉल्यूशंस. क्वेश्चन के अंदर ये क्लियरली मेंशन है कि FB7 एंड FB8 दीज आर टू डिफरेंट सॉल्यूशंस, both has a cation and one anion, so we have to identify these. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज एक क्वेश्चन नंबर 3 ए का फर्स्ट पार्ट में आपको एक खास इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि यू आर सपोज टू टेक 1 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ ईच ऑफ द सॉल्यूशन टू परफॉर्म एनी टेस्ट. तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए परफॉर्म करते हैं विच इज बेस्ड ऑन टेस्ट. अच्छा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू आर सपोज टू डू, आप लोगों ने करना क्या है, कोई भी क्वालिटेटिव टेस्ट परफॉर्म करने से पहले आपको डिस्टिल्ड वाटर से तमाम टेस्ट ट्यूब्स को रिंस कर लेना है. तमाम टेस्ट ट्यूब्स को आप रिंस कर लीजिएगा डिस्टिल्ड वाटर से. इससे तमाम शुबहात, तमाम सस्पेक्ट्स खत्म हो जाते हैं कि इसमें किसी किस्म का कोई कंटेमिनेशन ना हो, जो कि आमतौर पे मौजूद होता है टेस्ट ट्यूब में. So before starting any practical work, you better rinse all the tubes with distilled water. अच्छा जनाब, अब देखिए, there is a table given in the question like this. I have just copied it on the board. This is the question. A table given in the question. A test observation with FB7 and with FB7 and FB8, not FA, FB. FB7 and FB8. It's table 3.1, observation with FB7 and FB8, and these are the tests which are to be performed on each of the solution. So let's start. जल्दी जल्दी से इसको परफॉर्म करते हैं. हमने एक टेस्ट किया. इस टेस्ट में FB7 और FB8 1 centimeter depth is approximately 1 centimeter. Either you need a rule or a stationary scale to measure the height of the liquid. Otherwise आप अंदाजे से आपके अंदर होगा कि 1 centimeter कितना होता है. I just taken 1 centimeter. I guess it's enough. It is 1 centimeter approximately. हमने से 1 centimeter लिया FB7 को. अच्छा, first test is equal volume of Ki. Here we have Ki, potassium iodide. Equal volume, just take a reference height with your finger which is almost twice of the first liquid. तो मुझे अंदाजा लगा कि ये इतना होना चाहिए. मैंने इसके अंदर equal volume Ki डाला. See, what did I observe? मैंने देखा कि इसके अंदर it produced brown precipitates. It brown precipitates. Let us do the same with FB8. Again I took 1 centimeter depth, approximately 1 centimeter depth of FB8, or you need to perform the same with FB8 as well. अब मैंने इसके अंदर भी potassium iodide Ki, which is a colorless liquid because all halides are colorless and halogens are colored. Now I am adding 1 centimeter. It got a bit darker. First it was yellow, now it's a bit darker. So these are the two tests performed on FB7 and on FB8. अब मैंने इनको ऑब्जर्वेशन लिख लेनी है. With FB7 it was a suspension and with FB8 it was a solution. बिल्कुल क्लियर डिफरेंस है. What is the suspension? What is the solution? Suspension is anything that is not see-through,
एंड सॉल्यूशन इज एनीथिंग दैट इज सी थ्रू ऑल्दो इट इज कलर्ड. कलर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कौन से कंटेंट मौजूद हैं, मगर सस्पेंशन और सॉल्यूशन के फर्क को क्लियर समझ लीजिएगा बच्चों. ओके, विद FB7 व्हाट वाज माय ऑब्जर्वेशन? ब्राउन suspension obtained, and with FB8 brownish solution. दोनों ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ गई हैं. अब हमें नेक्स्ट पार्ट क्या करना है? इफ देयर इज ए डॉटेड लाइन आफ्टर सम टेस्ट, इट मींस you need to use the same tube and this part is to be added in the same tube. हम यहाँ पे tube change नहीं करने वाले. This is FB7. What is to be added? Na2H2O3 which is sodium thiosulfate. यहाँ पे sodium thiosulfate लिया और इसके चंद ड्रॉप्स आते हैं. What do you observe? See, the brown color vanished and it formed a white suspension. Let us do the same with FB8. It turned purple, light purple, and eventually, what you will observe, eventually it is colorless, the color vanished. Okay, let us note the observation. White suspension, you can see it's still a suspension. अब तक ये suspension है. And what about this? It went colorless. Solution. Right. Now let's go to the second test. मैं इन दोनों को स्टार्ट कर देता हूँ. चलिए, अगेन FB7 FB8 जिंक सॉलिड. मैंने इसके अंदर FB7 लिया, अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर हाइट. वापस से FB8 लिया, ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर हाइट. सी, अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर. यू डोंट नीड टू मेजर द हाइट, इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली. 7 और 8 दोनों आ गए. सी, by using a spatula we are supposed to add zinc in it. So this is a spatula. ये जिंक सॉलिड या तो आपको बीकर में मिल जाएगा सॉलिड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, अदरवाइज आपको ऐसे टेस्ट ट्यूब में मिल जाएगा. कुछ भी नहीं करना है, स्पैचुला से थोड़ा सा लेना है और सबसे पहले मैं FB7 के अंदर इसे ऐड कर दूँ. तो मैंने FB7 में जिंक ऐड कर दिया. ठीक है, और मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब से भी ऐड कर सकता हूँ. इसके अंदर थोड़ा सा पाउडर ऐड कर दिया. सही है. अच्छा, after adding zinc, it's clearly mentioned in the question paper, leave to stand. इसे कुछ देर के लिए छोड़ दें. जब ये मैसेज मुझे मिलेगा leave to stand, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा देर में रखें. Leave to stand. After 2 or 3 minutes, we are going to observe the tubes again and then we will write it. अभी नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. टेस्ट नंबर 3, FB7 FB8 इन दोनों के साथ हमें सिल्वर नाइट्रेट डालना है. इन दो ट्यूब्स को मैंने फेंक कर रख दिया है क्योंकि मुझे इनकी ऑब्जर्वेशन बाद में लिखनी है. मैं दोबारा से I'll take 1 centimeter depth of FB7, 1 centimeter depth of FB8. ये दोनों लिक्विड हमने ले लिए. अभी कहा जा रहा है add silver nitrate. In this colored bottle, you will normally get AgNO3 as a bench reagent in your examinations and in your common laboratories. अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है? सिल्वर नाइट्रेट. You know one thing, silver nitrate is for the identification of halides.
like chloride, bromide, and iodide. First I'm adding it in FB7. We always add a few drops of it. No precipitate generated, mean no halide ion. Let us do it with the FB8. No precipitation. No precipitation. Okay, so what we can write over here, see, just 3 AgNO3 aqueous with FB7 blue solution with FB8 yellow solution. If there is no PPT, means no halide ion is there. It's for sure. Yeah, no PPT. Okay. Now let's come to test number 4. In another test tube, because there is a definite line, dotted line नहीं है, मतलब हमें एक नया ट्यूब लेना है और FB7 और 8 के अंदर aqueous अमोनिया वाला पार्ट परफॉर्म करना है. मैं टेस्ट ट्यूब ले लेता हूँ. एक मैं FB7 approximately 1 centimeter depth और एक में FB8 approximately 1 centimeter depth. See, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस अमोनिया, NH4OH और NH3 aqueous, ये दोनों नाम उसके लेबल हो सकते हैं. Let's go with FB7 first. You know NaOH and ammonium hydroxide, these two are the reagents for the identification of cations. तो हम इसको यूज कर रहे हैं, हमारा सब्सट्रेट कैटायन होगा. It gave us blue precipitate. जब मुझे blue precipitate मिल गया, it is getting darker at the top. आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कीजिएगा? First you will add a few drops, then you need to take it till the 2/3 of the tube, which is called excessive addition of ammonium hydroxide. Oh, what do you see ultimately? See, it's dark blue solution. Let's do the same with FB8. A few drops first. Very carefully observe the precipitates at the top of the liquid. Brown precipitates. Now I am going to add it in excess. See, they are getting darker. They are getting more and more. मज़ीद बढ़ा के इसको 2/3 of the tube कर लेते हैं excessive. Okay, why do we add the liquid in excess? That is for the solubility of the ion. You can still see it's insoluble. Red brown precipitate insoluble. Blue precipitate first with FB7, then dissolve in excess, leaving a dark blue solution. Let's note down the observation. Blue PPT, dark blue solution. Red brown PPT, insoluble in excess. अब हम 7 और 8 का जो जिंक वाला पार्ट था ये भी लिख लेते हैं साथ साथ. First it was yellow and now it is colorless. इस सॉलिड को इग्नोर कर दीजिएगा. ये सॉलिड जिंक है, कुछ पार्ट ने रिएक्ट किया, कुछ पार्ट ने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन जो कोर ऑब्जर्वेशन है वही सॉल्यूशन की है.
पहले येलो कलर सॉल्यूशन था, अब ये कलरलेस सॉल्यूशन है, कलरलेस सॉल्यूशन। इसी तरह इसके ऊपर आइए जरा, ये पहले डार्क ब्लू कलर का लिक्विड था और अब इस ब्लू का कलर फेड हुआ, तो अल्टीमेटली इसने डीकलराइज हो जाना है। तो आप इनकी ऑब्जर्वेशन को क्या लिखेंगे कि कलरलेस लिक्विड ब्लैक सॉलिड सैटर्न, कलरलेस लिक्विड ब्लैक सॉलिड सैटर्न। ये हमारी ऑब्जर्वेशन हो जाती है यहाँ पे कंप्लीट। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर इन तमाम ऑब्जर्वेशंस के बाद हमसे पूछा जा रहा है कि फॉर्मूला ऑफ FB8। ओके, फाइंड दिस FB8। FB8 का हमें फॉर्मूला बताना है कि FB8 के अंदर क्या चीज मौजूद होगी। ओके, aqueous ammonia was used for the cation. Red brown PPT insoluble in X's. We know there is only one ion, which is iron 3. That gives red brown precipitates and insoluble in X's. Now the next thing is, here we have Fe3 positive. We need to go to the anion. इसका anion क्या है? AgNO3 for the anion, and this is the only reagent for anion. Yellow solution. We had yellow solution. It was to be, I guess I was expecting some precipitate in it. Let's check the indicator, reagent. Maybe I might get the desired result with this one, reagent, which is silver nitrate. Sometimes it gives false observations, that's why I'm just confirming it. With this silver, let's repeat. See, the previous result was this, and I had a doubt on that. This is the actual result that I was expecting, or I am unable to identify the anion. So the problem was silver. I got the suspect. Sorry for that. Sorry for that. This is silver nitrate, and I had used a wrong reagent. So this is a mixture, a suspension. The main thing is silver. Why do we use silver? We use silver for the identification of halide ions. If I get white PPT, then it's chloride. If I get green precipitate, it's bromide. If I get yellow precipitate, it's iodide. Now, the very technical thing to understand is, if we have a yellow colored solution and we get white precipitates in it, it's quite difficult to understand. Yellow solution, yellow PPT. Yellow solution, green PPT. It's very difficult. So, what do we normally do? When you get the precipitates, leave it for some time so that the PPT will get settled. अब हम जब इसके सेटल होने का इंतजार करेंगे, तब हम इसके प्रेसिपिटेट को इजीली जज कर सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको सिर्फ सेटल होने के लिए रख रहे हैं, ताकि मुझे पता लग सके कि व्हाइट, ऑफ व्हाइट और येलो प्रेसिपिटेट में डिफरेंस कैसे लिया जाएगा। कलर्ड सॉल्यूशन का सिल्वर से रिजल्ट फौरन नहीं लिखा जाता। एक बात तो तय हो गई है कि यहाँ पे इट वाज नॉट येलो सॉल्यूशन, इट वाज precipitate, but I will write the color of the precipitate once it is settled. ब्रश पार्ट करते हैं। ब्रश पार्ट करने के लिए डेफिनेटली मुझे जरूरी है कि इसका एनाइन पता हो, तो इस वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, जब तक हम उसके सेटल होने का वेट कर लेते हैं। For FB8, state the number of all the tests from table 3.1
that involves a redox reaction. Okay, FB8, we added Ki. We know Ki is iodide, which is colorless. अगर सॉल्यूशन मेरा डार्क हो गया था, ब्राउन सॉल्यूशन हो गया था, तो इसका एक गारंटी है कि बेसिकली आयोडाइड कन्वर्टेड टू आयोडीन। अब आयोडाइड जब कन्वर्ट हो रहा है आयोडीन में, तो हम डेफिनेटली ये बात कह सकते हैं कि इसमें Fb8 में कोई ना कोई ऐसा आयन जरूर मौजूद है जिसने इस आयोडाइड को आयोडीन बनाया। -1 to 0, -1 to 0 इज बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आयोडाइड ऑक्सीडाइज हो गया। -1 to 0 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइज हुआ। Fb8 में कोई ऐसा आयन है जो रिड्यूस हुआ होगा, तो इस टेस्ट के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन took place. Fb8 zinc. Fb8 was yellow liquid, decolorized हो गया। हम जानते हैं कि iron 3 was there, तो अगर वो येलो से किसी और कलर में जा रहा है, इट मींस कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लाजमी चेंज हुआ होगा। हम कह सकते हैं रिडॉक्स। अब इसमें छोटी सी मिसाल देता हूं। इफ इट आयरन 3 पॉजिटिव एंड इफ इट टर्न टू Fe2 पॉजिटिव, सो दिस इज येलो इन कलर एंड दिस इज लाइट ग्रीन इन कलर। तो मे बी वो इतना मामूली सा लाइट ग्रीन लिक्विड बना हो कि हम इस लाइट ग्रीन को बिल्कुल जज नहीं कर पाए, लेकिन येलो कलर तो गया। जब येलो कलर गया, इसका मतलब ये है कि लाजमी इसके पास कुछ ना कुछ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा और ये Fe3 से Fe2+ बना होगा। हम जानते हैं 3+ से 2+ इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज रिडक्शन। तो इसके साथ जिंक का डेफिनेटली कोई ना कोई रिएक्शन हुआ होगा। अगर मैं आसानी से इसको समझूं तो मैं कह सकता हूं कि जिंक 0 से कोई ना कोई ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहुंचा होगा और आयरन 3+ से 2+ में गया होगा, तो ये रिड्यूस हुआ और जिंक ऑक्सीडाइज हुआ होगा। सो इट वाज अगेन अ रिडॉक्स रिएक्शन। अभी मैं टेस्ट 4 की बात कर लेता हूं। रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट insoluble in excess, it was in Fb4, in Fb8 we had iron 3, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया रेड ब्राउन पीपीटी। लेकिन आयरन 3+ का हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन आयरन 3 हाइड्रोक्साइड बनना, इट्स नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, ये कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। कलर प्रेसिपिटेट का रेड ब्राउन ही रहा, दैट स्टिल कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयन। फर्स्ट इट वाज Fe3 एंड इन द एंड इट रिमेन्ड Fe3, सो नो रिडॉक्स रिएक्शन। जबकि हम ये वाली बात कर लेते हैं, इसके प्रेसिपिटेट के कलर को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं। I guess I should have a bit more volume of silver, easy to differentiate. Oh, see, now I get the PPT. Let me transfer it into some other tube so that I can show you the color of precipitate. थोड़ा सा एहतियात से इसके प्रेसिपिटेट के कलर को चेक करना होगा आप लोगों को बच्चों। ये प्रेसिपिटेट जो इसके वॉल पे जमा हो गया, सी थोड़ा सा मैंने इसको डिकेंट किया तो ये पीपीटी का कलर आ रहा है। इससे आपने इसे जज करना है कि ये क्या कलर हो सकता है। एक तरीका तो ये कि मैं इस कलर को पहचान जाऊं और मैं कहूं यस इट्स वाइट पीपीटी। कुड यू ऑल सी एट द टॉप ऑफ द लिक्विड, अगर प्रेसिपिटेट देख पा रहे हैं। दूसरा एक और कंफर्मेटरी टेस्ट जिसे आप परफॉर्म अपने तौर पे कर लें, उसे दिखा नहीं सकते एग्जामिनर को क्योंकि उसे एडिशनल टेस्ट चाहिए भी नहीं होता। व्हाट वी कैन डू फॉर द प्रेसिपिटेट्स ऑफ सिल्वर, यू कैन चेक इट्स सॉल्युबिलिटी विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर मैं इसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालूं और अगर ये वाइट पीपीटी है तो ये डिसॉल्व हो जाएगा, अगर ये ग्रीन है तो इट्स नॉट सॉल्युबल, अगर ये येलो है तो सॉल्युबल। लेकिन एक प्रॉब्लम आएगा, मैंने ये देख लिया कि Fe Fb8 के अंदर
Fe3 पॉजिटिव है, तो जिसके अंदर सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर आयोडाइड के प्रेसिपिटेट्स मौजूद हैं, उसी के साथ आयरन 3 भी मौजूद है। अगर मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालता हूं तो ये रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट जनरेट करेगा, जैसे कि इसने पहले भी किया। अब मुझे ये समझना है कि रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट अपनी जगह अलग से प्रोड्यूस होंगे, लेकिन जो व्हाइट प्रेसिपिटेट इसके अंदर मौजूद है उसके साथ क्या होगा, बेसिकली हमें इस चीज को चेक करना है। तो लेट्स चेक। Now you can clearly see the white precipitate in the tube. अब आपको दिख रहा है, मैं ये देखना चाह रहा हूं कि क्या ये सॉल्युबल है या नहीं एक्सेसिव एडिशन के साथ। एक बात यकीन से कही जा सकती है कि अब इसमें रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट आ गया है, व्हाइट पीपीटी नहीं है और ना ही कोई व्हाइट का इम्कान। तो अगर इसके अंदर व्हाइट पीपीटी भी नहीं है और ऑफ व्हाइट पीपीटी भी नहीं है और येलो पीपीटी भी नहीं है, तो मैं एक बात कह सकता हूं कि फर्स्ट इट हैड व्हाइट पीपीटी जो कि अब डिसॉल्व हो गया है। अगर ऑफ व्हाइट या येलो होता तो वो इसमें रेड पीपीटी के साथ भी मौजूद होता, वो डिसॉल्व नहीं होता। व्हाइट का इंप्रेशन एलिमिनेटेड। अब मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इसके अंदर जो प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हुआ था वो येलो सॉल्यूशन के अंदर व्हाइट कलर का पीपीटी था, जो कि अब नहीं बचा। सो दिस इज बेसिकली, अब इसका ऑब्जर्वेशन कैसे लिखना है, व्हाइट पीपीटी इन येलो लिक्विड। इस ऑब्जर्वेशन को हम लिख सकते हैं, ये कंसिडरेबल है। अच्छा, अब अगर व्हाइट पीपीटी हमारे पास आया और मैंने उसे कंफर्म किया अमोनिया से, जो कि मुझे यहाँ बताना नहीं था, मैंने अपने तौर पे कंफर्म किया इसे। तो व्हाइट पीपीटी, मैंने सिर्फ ये चाहा कि वो कलर व्हाइट है, ऑफ व्हाइट है या येलो। मैंने अमोनिया से इसको चेक किया तो व्हाइट पीपीटी निकला, क्योंकि वो डिसॉल्व हो गया। अब मैं जानता हूँ कि इसका जो नेक्स्ट है एनायन, इट इज Fe, इट इज Cl माइनस। सो फॉर्मूला ऑफ Fe8, फॉर्मूला ऑफ Fe8 इज FeCl3, iron 3 chloride. That involves a redox reaction. हमने कहा यहाँ पे कोई रिडक्शन नहीं है, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट में रिएक्ट किया आयरन 3 क्लोराइड से, सिल्वर Ag पॉजिटिव था इसलिए रिएक्ट किया Cl माइनस से, जो कि ऑलरेडी Fe8 का पार्ट था। So the compound was AgCl. It was solid. कोई रिडक्शन, कोई ऑक्सीडेशन नहीं है इसके अंदर, पहले भी Ag पॉजिटिव था, रिएक्शन के बाद भी Ag पॉजिटिव ही है, तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। इसका मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। एक्वस अमोनिया, रेड ब्राउन पीपीटी, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो इनका क्वेश्चन ये है कि state the number of all tests from table 3.1 that involve the redox reaction। तो इस तरफ redox reaction हमारे पास दो टेस्ट के अंदर मौजूद है। So the answer is 2। ये हमारा आंसर हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे, आयोनिक इक्वेशन इन टेस्ट नंबर 4 फ्रॉम द टेबल। टेस्ट नंबर 4 में अगर कोई आयोनिक इक्वेशन बनी है तो वो लिख के दे दीजिए। आयोनिक इक्वेशन बिल्कुल बनता है। मैं जानता हूं कि Fe7 में अगर एक्वस अमोनिया डाला, ब्लू पीपीटी विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस लिविंग डार्क ब्लू सॉल्यूशन, इट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयन। अब Cu2 पॉजिटिव आयन के साथ जब मैंने एक्वस अमोनिया NH4OH डाला तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बना, दैट वाज सॉलिड फर्स्ट एंड देन इट वाज डिसॉल्व्ड। यहां पे आ जाते हैं, Fe8 के अंदर आयरन 3 पॉजिटिव मौजूद है, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट व्हिच वाज इनसॉल्युबल इन एक्सेस। तो इन दोनों में से जिसकी चाहे आयोनिक इक्वेशन बना लीजिए। हम Fe8 की बना लेते हैं, उन्होंने बोला टेस्ट 4 फ्रॉम द टेबल, कोई भी दोनों में से। हम आयोनिक इक्वेशन कैसे बना रहे हैं, Fe3+ which was the part of Fe8, Fe3+, it was in aqueous state। aqueous का क्या कब aqueous लिखा जाएगा, ये देखो बेटा, Fe8 ये एक aqueous सॉल्यूशन है और इसमें कोई प्रेसिपिटेशन नहीं। इसका मतलब जो कंपाउंड इसमें यूज किया गया है वो पानी में डिसॉल्व हो गया। जो चीज पानी में डिसॉल्व हो जाती है तो उसका एक्वस सॉल्यूशन जनरेट हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा Fe3 positive in aqueous form, it reacted with
Aqueous ammonia, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में से OH नेगेटिव will react. That was already in aqueous state. क्यों? वापस से बता देते हैं कि ये aqueous फॉर्म में मौजूद है, तो आप इसे OH माइनस और NH4 प्लस aqueous बोलेंगे. टोटल बना लेते हैं. FeOH taken 3 but solid. See, red brown precipitate, it was solid. So ionic equation is when the state symbol changed, the result is called ionic equation. तो हमने इसका ionic equation भी लिख दिया. अब इसके बाद इसमें पार्ट बी का पार्ट वन anion in Fe7. Anion does not contain sulfur. Record the test and observation. अब मुझे कहा जा रहा है कि Fb7 के anion को आइडेंटिफाई करना है. मैं पूरे को इरेज कर देता हूं और Fb7 का anion आइडेंटिफाई करना है, जबकि इसमें सल्फर नहीं है. तो हमारा जो एनालिसिस शीट होता है उसमें सल्फर वाले कौन कौन से आयन मौजूद हैं. सल्फेट, सल्फाइड, बाकी हैलाइड्स हैं हमारे पास, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और दो आयन आपको मिलेंगे NO3 माइनस, NO2 माइनस और एक मिलेगा CO3 माइनस. ये तमाम आयन्स हैं जो हमारे एनालिसिस शीट में मौजूद हैं. इसमें से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दीज टू आर नॉट प्रेजेंट. सल्फेट और सल्फाइड तो नहीं है. अच्छा, अगर सल्फेट सल्फाइड नहीं है तो ये तमाम में से कोई आयन होना चाहिए था. इन तीन का क्लू मुझे ऑलरेडी मिल चुका है जब मैंने Fb7 के अंदर AgNO3 डाला था, तो वहां पर मुझे कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिला. मैं इस चीज को वापस से कंफर्म करवा देता हूं आपको, ताकि आपको याद आए कि हमने क्या किया था इस टेस्ट में. Here I took Fb7, I will add AgNO3. See, sometimes this is called the impurity of silver. White precipitate बहुत डार्क होता है. अगर ये लाइट सा मिल्की सा हो जाए, इसका मतलब इसका व्हाइट पीपीटी नहीं है. व्हाइट पीपीटी इज कंप्लीटली डार्कर पीपीटी, बिल्कुल सी थ्रू नहीं रहेगा. मैं उसकी एग्जांपल भी दे देता हूं आपको. वापस से रिमेमोराइज करा देता हूं आपको व्हाइट पीपीटी का होना. से just compare the difference between these two precipitates. This is white PPT, this light white PPT. Maybe it can be the error of distilled water of silver nitrate. आमतौर पे इसका कलर नहीं आता. अगर क्लोराइड नहीं है तो इसका कलर नहीं आएगा. That's why I wrote blue solution. Blue solution का मतलब no PPT. मतलब ये हुआ कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ये तीनों भी Fb7 में मौजूद नहीं है. अब या तो नाइट्रेट है या नाइट्राइड है या कार्बोनेट है. इन तीन में से कोई एक आयन कॉपर के साथ मौजूद है. अच्छा, एक और प्रॉब्लम. कॉपर कार्बोनेट, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. लाइक दिस हम केमिस्ट्री ऑफ केमिकल्स आप लोग ये पढ़ के आ चुके हैं कि अगर Fb7 कॉपर कार्बोनेट होता तो वो तो पानी में डिसॉल्व ही नहीं होता. इसका मतलब कार्बोनेट आयन ही नहीं है हमारे पास. आपके पास जो O लेवल्स का नॉलेज है वो ये बताता है लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट, these carbonates are potassium carbonate are soluble. इसके बाद के कार्बोनेट सॉल्युबल नहीं है. तो मैं ये कह सकता हूँ कि Fb7 में चूंकि कॉपर 2 मौजूद है, लिहाजा उसका आयन कार्बोनेट नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतनी क्लियर फॉर्म में भी नहीं हो सकता. तो ये एक गारंटी हो जाती है. अब मैं बच रहा हूँ नाइट्रेट और नाइट्राइट के साथ. तो बोलते हैं कि टेस्ट परफॉर्म कीजिए और बता दीजिए कि Fb7 में कौन सा एनायन मौजूद है. अब हम सिंपली क्या करेंगे कि
जस्ट फॉर कंफर्मेशन मैं एक दफ़ा फिर इसको टेस्ट कर लेता हूँ कि शायद मुझे मुतवक्का जवाब मिल जाए कॉपर में सिल्वर डालने का। मैं फिर एक दफ़ा टेस्ट करता हूँ कि इसमें कोई प्रेसिपिटेशन जनरेट नहीं होता। आई एम जस्ट रिपीटिंग द टेस्ट विद अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। स्लाइड पार्शियल वाइट पीपीटी आ रहा है, इसको आप हमेशा इग्नोर करेंगे, उसे डेंस वाइट पीपीटी होना चाहिए। The question was test for nitrate on FB7 or nitrite. तो अगर हम नाइट्रेट और नाइट्राइट के टेस्ट की बात कर लें तो नाइट्राइट बेसिकली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है जब हम उसके अंदर एसिड डालते हैं, और नाइट्रेट गैस रिलीज नहीं करता। दूसरा टेस्ट नाइट्रेट के लिए और नाइट्राइट के लिए कॉमन है कि हम उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें, उसको हीट करें, उसमें से अमोनिया रिलीज होगा और वो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। लेकिन ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो हमें ऐसा टेस्ट परफॉर्म करना है जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करता हो कि ईदर नाइट्रेट और नाइट्राइट। उसके लिए हम एक टेस्ट परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं। हम FB7 में एसिड डालते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर इसमें ब्राउन कलर गैस प्रोड्यूस होगा जो हम इसी वाइट बैकग्राउंड पे देख सकते हैं, इसके ऊपर छोटे-छोटे बबल्स और बबल्स के साथ ऊपर ब्राउन कलर फ्यूम जनरेट होते हैं। दैट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब इसके अंदर नाइट्राइट आयन मौजूद नहीं है। सो इट इज गारंटीड कि इसमें नाइट्रेट आयन मौजूद है। वो बोलते हैं कि इसका टेबल बनाइए, इसका टेस्ट परफॉर्म कीजिए। हम इसका टेस्ट करेंगे। टेस्ट ऑब्जर्वेशन 1 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ FB8 1 centimeter depth of ACl aqueous. What was the observation? No gas released. This confirms the presence of nitrate ion. Nitrate confirm हो जाता है। Deduce the formula of FB7. अब लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का कि इसका फॉर्मूला डिड्यूस कर दीजिए। हमने आपसे कहा कि जब एक्वस अमोनिया डाला ब्लू प्रेसिपिटेट जनरेट हुआ, उस ब्लू प्रेसिपिटेट का मतलब जो कि सॉल्युबल था, इट वाज नथिंग बट Cu2 पॉजिटिव आयन। और इस वाले टेस्ट ने कंफर्म किया कि इसके अंदर नाइट्रेट आयन है। सो द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज CuNO3। It is the formula of the compound. उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप प्लीज़ रब्ता कर सकते हैं, कोई मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।